Hello everyone. So today we are going to see executor framework. Uh, in this video, we will learn all the component of executor framework. So I'm going to create one new playlist where हम देखेंगे सारी चीजें क्या क्या होता है एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क से रिलेटेड। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क क्या है, इसका यूज क्या है, वाई वी नीड दिस वन, एंड इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल मेथड्स एंड फीचर्स हैं. So we will see all those things one by one. So I will create one playlist and I will upload one by one video in that playlist. So one feature we will take of Jupyter framework, and then we will go in depth in every feature. So today we are going to discuss the agenda of this playlist basically. So our main agenda is to learn from basic to advanced executor framework. So I'll explain what is the agenda, and from next video, we'll pick one topic and we'll go in depth. We'll do some demo. I'll show some example as well, practically, and I'll explain each and every corner cases. So now we'll start the agenda for today. Not for the today, basically for this playlist. So our agenda is basically what we are going to learn for executors framework. So, so our first agenda is what is executor framework and how does it work. ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क क्या है, क्या यूज है, कैसे ये काम करता है, हम एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क यूज करने की क्या जरूरत है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है. क्या जरूरत मीन्स आई मीन इट्स अ काइंड ऑफ वन थ्रेड पोल. सो क्या हम अपना थ्रेड पोल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, अपना थ्रेड पोल क्रिएट करके हम यूज नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, तो वो सारे डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क क्या है और ये काम कैसे करता है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एजेंडा है हाउ टू यूज रनेबल एंड कॉलेबल विथ एग्जीक्यूटर सर्विस. सो बेसिकली हमें एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले जनरली ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए. बट फिर भी मैं जो भी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटर सर्विस आ रहे हैं डायरेक्ट पढ़ने, जिनको मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक नहीं पता है, तो उनके लिए मैं इस पे मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट या आई विल एक्सप्लेन. बट नॉर्मली क्या है कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क पढ़ने से पहले एटलीस्ट मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. But anyway, if anyone is very fresh, very beginner, I will explain like what is runnable, what is callable, how we can use runnable and callable with executor service. Then difference क्या है दोनों में? In which case we have to go for runnable, in which case we have to go for callable. तो सारे हम यूज केसेस पढ़ेंगे, कब रनेबल जाएंगे और कब कॉलेबल जाएंगे. Then I'll give one example, demo and example I will give on runnable and callable with the executor service. So ये high level रहेगा. I mean to start basically we need to know at least runnable क्या होता है, callable क्या होता है, because पूरा हमारा executor framework का जो भी philosophy है वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है, runnable callable के ऊपर. तो हमें I mean ये जानना जरूरी रहेगा. और कब किस यूज केस में कब क्या हम चूज करेंगे रनेबल कॉलेबल, वो जानना जरूरी है. इसलिए आई एम प्लानिंग टू एक्सप्लेन एट बेसिक लेवल all the things related to runnable and callable. Then next agenda है, I mean yeah, so there are few methods which are very major, I can say which will play a very major role in executor service, executor framework. So वो सारे methods हम देखेंगे. ये सारे मेथड्स आई मीन बेसिक्स हैं, हमें बस समझना है. बट हाउ टू यूज, हाउ वी विल गो इन डेप्थ मे बी couple of slide later. So what is the use of following methods? So like execute method क्या काम करता है, submit method काम क्या करता है, shutdown क्या है, shutdown now क्या है, each shutdown क्या है, await termination क्या है, invoke all क्या है, invoke any क्या है, each terminated क्या है. ये सारे मेथड्स के बारे में हम थ्योरिकली फर्स्ट डिस्कस करेंगे.
because there are so many confusion between each and every method. So first we have to understand all the concept related to these methods. Then we will go for like demo purpose. So we'll pick one method and we'll do some example. We'll create some program and I will show some demo on each and every methods. So इस स्लाइड में हम बेसिकली प्रैक्टिकली सारे मेथड्स को रन करके देखेंगे क्या क्या यूज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या डिफर करता है एक दूसरे से, कब किसको हम यूज कर सकते हैं और कब किसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें वी विल सी इन दिस एजेंडा. Then in next slide, yeah. So if you see, so from here basically our main executor framework start. So earlier whatever we see, those things are very basic. To understand these all things, we basically need all this information, these methods, this process, runnable, callable, all those things we need basically. And we should aware at least what is the use of which method, all those things we should know. Then we will go and we will try to understand each and every methods. So basically what is this? How many utility methods are there to create the thread pool? So see, executor service is nothing but one pool of multiple threads. So how we will get the pool? We have to use any one of these methods to create the pool. तो हम कोई ना कोई मेथड यूज करेंगे इसमें से एक पोल क्रिएट करने के लिए. अब वो मेथड क्यों यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है. हम ब्लाइंडली किसी मेथड को नहीं ले लेंगे. ये यूटिलिटी मेथड है जरूर, बट इसके पीछे काफी चीजें हैं जो इंटरनली करता है, एंड देन फाइनल इट विल गिव अस ए वन थ्रेड. तो किस यूज केस में हम कौन सा यूटिलिटी मेथड सेलेक्ट करेंगे, वो सारा यूज केस हमें पढ़ना. लाइक इफ यू सी न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, ये एक टाइप का यूटिलिटी मेथड है. इसका इंटेंशन अलग है, इसका यूज केस टोटली अलग है. तो अब देखेंगे इसमें जो भी यूटिलिटी मेथड्स हैं उसके दो दो पार्ट हैं, दो दो टाइप्स है बेसिकली. एक है सिंपल डिफॉल्ट बिहेवियर वी कैन से. एक है कि हम थ्रेड फैक्ट्री उसमें पास कर सकते हैं. तो थ्रेड फैक्ट्री पास करने का मतलब कि एट सम लेवल वी कैन डू सम काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, बट ये पूरा कस्टमाइजेशन नहीं है. इट्स अ हाई लेवल वी कैन डू one level up customization for the thread factory, I mean at the thread factory level. तो ये सेम चीज है ना, सबके साथ है. न्यू फिक्स थ्रेड पूल है उसके साथ भी. हाँ, तो आई मीन देर आर too much differences between each and every method, so we will learn like why we are passing here and thread, then this all thing. So this all method first we have to understand. We should know each and every concept behind each and every utility method, what internally it's using, what kind of data structure it's using, for which use cases, which utility method is suitable. All those things we have to theoretically first we have to understand. Once we understand the theoretically, then we can go for uh, demo or example, basic, small example we will see. So you'll see live demo at different use cases for all utility method. डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन बिहेवियर डेफिनेटली, आई मीन जो भी हम देखेंगे वो इन सबके डिफॉल्ट बिहेवियर देखेंगे जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन, इवन दोज वी आर पासिंग द थ्रेड फैक्ट्री. सो एज आई मेंशन इट्स अ हाई लेवल one step up we can say customization, but it's not fully customized. And what do I mean by customization? Customization means we are not going to create our custom executor services classes. We are not going to create our custom classes, and we will do all things how executor framework we working. Same thing we are going to do. It's not like that. Customization means what I'm trying to explain. So all control we will take care. So executor framework will not take care of the control. If you want to do which kind of task, how to execute all the behavior we want to handle by our end, then we have to do some kind of customization. If you are not interested to do customization, then we can go and we can use any default behavior. But we should know basically the customization part.
If we don't know internal implementation, internal how it works, then it will be quite difficult to choose utility method for a specific use cases. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा जब भी कोई यूज केस आएगा और आप सोचें कि कौन सा यूटिलिटी मेथड मैं यूज करूं, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो वो सारा प्रॉब्लम हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो मेन इंटेंशन है कि वो अभी हम जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको हम एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे क्या क्या होता है डिफॉल्ट में। तो वही सेम चीजें स्लाइड में मैं मेंशन किया हूँ, तो डेमो होगा जो भी होगा, बट डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन। डिफॉल्ट के बाद हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द कस्टमाइजेशन, कि हाउ वी कैन डू द कस्टमाइजेशन। But before customization, we should know couple of things. So one thing is executor service hierarchy flow we have to. So what is the hierarchy flow? Because this is going to play major role in executor framework customization. So we'll see one by one what is executor, what is executor service, what is abstract executor service, and what is the role of thread pool executor. तो ये हम देखेंगे वन बाय वन, सबका यूज केसेस, सबका एग्जांपल देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब क्या यूज है। देन वी विल गो वन बाय वन फॉर कस्टमाइजेशन। हाँ, द नेक्स्ट स्लाइड में है कि आई मीन डेफिनेटली फॉर कस्टमाइजेशन वी नीड दिस ऑल हायरार्की, बट along with those hierarchy we need these all key and terms. We should know very clearly what is the core pool size, what is the maximum pool size, what is the keep alive time, what is the time unit, what is the work queue I mention blocking queue. So why I mention as a blocking queue, we will see what is the thread factory, what is the rejection handler. So I mean, even though we are not doing customization, executor framework will do these all things for us. If you go in last slide, whichever utility method we are going to create, this almost all the things are going to use. Sometimes core pool size, max pool size, maximum pool size will not get involved for a couple of utility, but most of the terms and key will involve in every utility method by default. So that's why I mentioned if we want to do customization, then we will have our own control on these all key and terms. So what this agenda said, the following are a few important key and terms in executor service, which we need to know for customized behavior. So first one is core pool size, second one is maximum pool size, third one is keep alive time, fourth one time unit, next work queue, then next thread factory, and last one is rejection handler. So I mean, as of now, I mean, you should at least remember the name कि ये सारी चीजें टर्म्स यूज होने वाले हैं हमारे एग्जीक्यूटर सर्विसेज में। इवन हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डजंट मैटर, बट ये रोल प्ले करेंगे आपके एग्जीक्यूटर सर्विस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको कस्टमाइजेशन जानना इसलिए जरूरी है, तभी हम एग्जैक्ट यूज के समझ पाएंगे कि कब हमको किस यूज केस के लिए जाना है और कौन सी यूटिलिटी मेथड सेलेक्ट करना है टू क्रिएट द पूल पूल ऑफ थ्रेड्स। तो ये देखेंगे हम। सो लाइक एजेंडा ये था हमारा, ओके डन। हाई लेवल ऑफ डिस्कशन ऑन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, या सो मेनली अभी आई मीन व्हाट आई सेड इनिशियली वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑल नेम, ये बहुत बिग रोल प्ले करने जा रहा है, एंड देन वी विल टेक वन बाय वन ईच एंड एवरी, एंड theoretically we will understand what is the use of core pool size, what is the use of maximum pool size. Normally in short we say also as a max pool size. So this is high level of discussion of following concept like core pool size, maximum pool size. So this one, then again we will take high level discussion on following concept. So use of keep alive time and use of time unit. Uh, then again we will discuss high level of discussion on following concept.
So use of blocking queue, use of bounded queue, use of unbounded queue. तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये सब देखेंगे. Thread factory, again we will discuss thread factory. Then yeah, high level of discussion we will do for rejection handler. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिजेक्शन हैंडलर में अबाउट पॉलिसी है, डिस्कार्ड पॉलिसी है, डिस्कार्ड ओल्डेस्ट पॉलिसी है, कॉलर रन पॉलिसी है. तो ये सारी चीजें हम थ्योरिकली देखेंगे कि क्यों जरूरत है एग्जीक्यूटर सर्विस को, क्या यूज केस ये फुलफिल करेगा कि इसको हमको जरूरत है. देन नेक्स्ट वी विल सी लेजी एंड ईगर इनिशियलाइजेशन ऑफ थ्रेड्स. या तो लेजी एंड ईगर आई मीन जब भी हम कुछ पास करते हैं, अगर हम जाएंगे प्रीवियस स्लाइड में, तो जैसे कुछ भी हम पास कर रहे हैं, 5 थ्रेड, 10 थ्रेड, n थ्रेड, तो इसका मतलब क्या है कि इमीडिएटली उतने थ्रेड क्रिएट हो जाते हैं. यस, तो ठीक है. नहीं तो कब होते हैं. और अगर इनिशियली क्रिएट हो जाते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है. अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं कि इनिशियली क्रिएट ना हो, जब हम यूज करने जाए तब क्रिएट हो, तो इसी को हम बोलते हैं लेजी और एगर लोडिंग. तो उसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे. तो हो गया ये लेजी एगर लोडिंग. ओके, फाइन फाइन. और उसका हम एग्जांपल देखेंगे, लाइव एग्जांपल डेमो देखेंगे कि कैसे उसको लेजी इनिशियलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको एगर इनिशियलाइज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है यूज ऑफ अनकैच एक्सेप्शन हैंडलर. इसका भी बहुत बड़ा रोल है. इसका रोल है कि मतलब बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करने में, थ्रेड लेवल के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए. थ्रेड लेवल को एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए मेरा मतलब है कि लेट्स अज्यूम यू हैव क्रिएटेड वन पूल ऑफ 10 थ्रेड. तो 10 थ्रेड क्रिएट कर दिया और ऑल 10 थ्रेड्स आर रनिंग सम टास्क, ऑल आर बिजी. एंड व्हाट हैपेंड, because of some bad coding we can say, or because of some incident, some thread got died. Let's see, some task throw null pointer exception or some exception occurred. Due to that, some thread got died. So what will happen in that case? We created 10 thread, but because of some incident, couple of thread got died. So let's assume 3 thread got died. Now only 7 threads are there in my pool, but I'm assuming all 10 threads are there, because if I have created pool of 10 thread, that means 10 threads should be there always. But one by one, some threads are getting died. So how we will handle those use cases? So those use cases we will handle through the uncatch exception handler. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम वन बाय वन. 3 टाइप का है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, लोकल एक्सेप्शन हैंडलर एंड ग्रुप एक्सेप्शन हैंडलर. तो वो देखेंगे उसको कैसे हम यूज करते हैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क. देन व्हाट नेक्स्ट, जो फ्यूचर टास्क कंप्लीटेबल फ्यूचर. या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि इसको हमको बहुत पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं पहले ना करके इसको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसको फिर हम डेप्थ में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज केसेस है. तो इनिशियल में अगर हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो फिर उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो फिर एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में थोड़ा टाइम कम मिल पाएगा. इसलिए एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का सारा कॉन्सेप्ट मतलब फिनिश करके देन वी विल, ये भी एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के साथ ही यूज होगा, बट इसका यूज केसेस थोड़ा अलग अलग है. सो वी विल सी दिस ऑल थिंग्स इन लास्ट. फ्यूचर टास्क, कंप्लीटेबल फ्यूचर, माइनर फ्यूचर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स. सो आई थिंक इतना ही है एजेंडा में, और इतना अगर हम अच्छे से सीख गए तो आई थिंक we will have much clarity on executor framework. We can take more decision based on the use cases, what kind of use cases will fit for specific utility methods. So we will get more idea if at least whatever agenda I have mentioned, if we understood very clearly. So high level I already explained all the agenda, uh, like lazy either. Okay, fine. So yeah, rejection handler. So rejection handler बेसिकली होता क्या है. रिजेक्शन हैंडलर का रोल कहाँ आता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अनपैच्ड एक्सेप्शन हैंडलर का रोल आता है जब भी कोई थ्रेड डाइड हो जाता है, तो उस केस में हम उसको यूज करेंगे. लेकिन रिजेक्शन हैंडलर का यूज कहाँ है?
रिजेक्शन हैंडलर का यूज वहां पे आएगा, लेट्स एज्यूम नॉर्मली होता क्या है ना कि जब भी हम कोई टास्क सबमिट करते हैं तो टास्क किसी न किसी क्यू में जाके स्टोर होता है, जो ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं आपको दिखाया हूँ कि क्यू है एक ब्लॉकिंग क्यू यहाँ पे। तो जब भी हम कोई टास्क सबमिट करते हैं तो सारा टास्क क्यू में जाता है और वो क्यू से हमारा थ्रेड पिक करता है और पिक करके एग्जीक्यूट करता है। तो जो ये रिजेक्शन हैंडलर है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, यस, ये जो रिजेक्शन हैंडलर है इसका काम क्या है कि अज्यूम कि आपका क्यू का साइज 500 है और 500 टास्क ऑलरेडी आ चुके हैं क्यू में और आपके पास 10 थ्रेड है, लेट्स से जो, और वो 10 के 10 थ्रेड बिजी है, वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो 10 टास्क वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 500 टास्क ऑलरेडी आपके क्यू में पड़ा है, क्यू फुल है। अब नेक्स्ट कोई नया टास्क आएगा तो वो कहाँ जाएगा, क्यू तो फुल है, थ्रेड भी बिजी है, तो टास्क कोई ले ही नहीं पाएगा। तो जब वो टास्क ले नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली भी किसी का रिक्वेस्ट आया है तो वी हैव टू डू समथिंग ऑन दैट रिक्वेस्ट। तो उसको क्या करना है, उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, वो सारा यूज केस हम रिजेक्शन हैंडलिंग में पढ़ेंगे। रिजेक्शन हैंडलिंग में उसको कैसे हम यूज करेंगे। थ्रेड फैक्ट्री, थ्रेड फैक्ट्री जब हम इसको बेसिक करेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द थिंग थ्रेड फैक्ट्री का, क्योंकि मैं बोला हूँ एक लेवल अप ये कस्टमाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्रेड फैक्ट्री पास करना पड़ेगा जब 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 हम इसको यूज करेंगे तो यहीं पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम थ्रेड फैक्ट्री का देख लेंगे, बट फिर भी कुछ बचेगा एडवांस का तो हम उसको इसमें कवर करेंगे थ्रेड फैक्ट्री। और इस यहाँ पे कवर करके यहीं पे मैं दिखाऊंगा कि हाउ वी कैन डू लेजी एंड एगर लोडिंग, लेजी एंड एगर इनिशियलाइजेशन ऑफ थ्रेड। तो ये मेन यूज है थ्रेड फैक्ट्री का कि we can create our custom thread factory and that custom thread factory we can pass to the executor service and executor service will treat our thread factory, and based on our thread factory created object, basically whenever executor service request for a thread, so internally it use the thread factory to create the new thread, and that newly created thread will get used by executor framework। सो वो सारा लॉजिक हम अपना एक कस्टम थ्रेड फैक्ट्री बना देंगे और हम एग्जीक्यूटर सर्वर को बोलेंगे कि आप अपना थ्रेड ना क्रिएट करो, आप हमारे थ्रू नया थ्रेड क्रिएट करो। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस लॉजिक देंगे और उसके बाद एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क उसके बेस पे वो थ्रेड क्रिएट करेगा। सॉरी। हाँ, ये है मतलब क्यू बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉकिंग क्यू हमको देखना है, काफी मेजर रोल है इसका। तो ब्लॉकिंग क्यू क्यू का मतलब क्या है रोल, अगर देखेंगे यहाँ पे ये ब्लॉकिंग क्यू जिसको मैं टर्म्स दिया हूँ वर्क क्यू है, तो जो भी वर्क से रिलेटेड, वर्क इन नथिंग बट टास्क क्यू है, तो टास्क क्यू है ना एक काइंड ऑफ ब्लॉकिंग क्यू रहेगा। तो ब्लॉकिंग क्यू क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा आई मीन इन डिटेल, बट नॉर्मली ब्लॉकिंग क्यू का यूज है टास्क को होल्ड करने के लिए, क्योंकि भाई हमारे पास मल्टीपल टास्क आएंगे तो हु विल हैंडल दैट, तो वी नीड सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म, सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क इंटरनली यूज ब्लॉकिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अगेन ब्लॉकिंग क्यू के मल्टीपल पार्ट है, array blocking queue, linked blocking queue, I mean linked list blocking queue, then priority blocking queue, so there are multiple data structure, so which utility method use which data structure वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाउंडेड क्यू क्या है एंड अनबाउंडेड क्यू क्या है, डेफिनेटली इसको भी मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। बाउंडेड क्यू का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक क्यू है जिसका साइज 500 है, तो बाउंडेड क्यू का मतलब कि क्यू का कुछ लिमिटेशन होगा, अनबाउंडेड क्यू का मतलब देयर इज नो लिमिटेशन है। बट इसको भी हम पढ़ेंगे यूज केस के साथ। अगर हम अनबाउंडेड क्यू यूज करेंगे दैट मीन्स जो भी हम कोर पूल मैक्स पूल की बात कर रहे हैं वहां मैक्स पूल को हम कभी यूज नहीं कर पाएंगे। बाउंडेड क्यू यूज करेंगे तो मैक्स पूल हमारा पिक्चर में आएगा। तो वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि वो क्या होता है बाउंडेड क्यू। हाँ, ये है कीप अलाइव टाइम। ये बेसिकली, तो देर आर टू थिंग्स, अभी मैं जब बताऊंगा डिटेल में तो आपको समझ में आएगा भाई कोर पूल साइज मैक्स पूल साइज। तो ये टाइम बताता है कि कितना देर तक वो थ्रेड वेट करेगा हमारे क्यू में।
तो ये टाइम बताता है मैक्स पूल का, ना कि कोर पूल का। कोर पूल जितना है वो हमेशा हमारे पूल में रहेगा, लाइव रहेगा, बस वॉच करता रहेगा क्यू को। जैसे ही कोई टास्क आया क्यू में, ऑटोमेटिकली वो टास्क को जाएगा, पिक करेगा एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। बट जो भी मैक्स पूल है उसका ड्यूरेशन हम सेट करते हैं कि भाई मैक्स पूल आया तो उसका ड्यूरेशन सेट कर दिए, लेट्स अज्यूम 30। और ये टाइम यूनिट बताता है कि वो 30 क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा कि मिली सेकेंड रहेगा कि मिनट रहेगा कि हार रहेगा, जो भी है टाइम यूनिट वो यूनिट बताएगा। तो ये बेसिकली मैक्स पूल के लिए वेटिंग टाइम, कितना देर तक अगर एक टास्क फिनिश हो जाता है तो कितने देर तक वो नए टास्क का वेट करेगा, और अगर नया टास्क उस ड्यूरेशन के अंदर आ गया तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं आया तो वो थ्रेड डेड हो जाएगा। तो सारा चीज पढ़ेंगे डेफिनेटली। कोर पूल साइज, मैक्स पूल साइज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब भी हम उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अभी तो हम एजेंडा बस बता रहे हैं कि क्या क्या एजेंडा है। तो ये सारे एजेंडा है हमारे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के। तो अब ट्राई करेंगे कि इसको जल्दी खत्म करें और अच्छे से खत्म करें विथ प्रैक्टिकल, विथ मल्टीपल यूज केसेस, एंड try to cover I mean I will try to cover all the corner cases कि क्या क्या हो सकते हैं, एंड देन एक बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा कि हाउ वी कैन अप्रोच द things basically for different kind of use cases. So I think इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, एंड we will meet in next video. I will create one new video and I will pick one topic and I will explain in detail. So uh, till that time, yeah, thank you so much. Take care. Yeah, bye.